Hello everyone, good morning and Jai Hind to all of you. So previously we have completed chapter number 8, introduction to geometry, right? Now let's start chapter number 9. Okay? So chapter number 9, that is the applications of trigonometry. Okay? So in this chapter we'll use the trigonometry's introduction, some formulas of trigonometry, right? So let's start chapter number 9. There is only one exercise. Okay, so first let's see some theoretical. Suppose any human being observe anything, so this is the eye of the observer, the straight line from his eyes, which is called horizontal level. ओके, हॉरिजॉन्टल लेवल. नाउ फ्रॉम दिस, मतलब यहाँ उसकी आई से वो जहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है ऑन द सम हाइट ऑफ, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, राइट? सो दिस ह्यूमन बीइंग ऑब्जर्विंग दिस ऑब्जेक्ट, सो दिस एंगल बिटवीन दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट. So angle between line of sight and the horizontal level, which is called angle of elevation. And suppose he observing downwards any object, so this angle from the horizontal level, eye level, to this line of sight, so this angle is called the angle of depression, right? It means what? अगर ऊपर है तो angle of elevation, नीचे है तो angle of depression. Okay, so now using this, let's start exercise number 9.1. Number 1. Okay, you have to make a figure first. After that the sum will be very easy. Okay, you have to use some formulas of trigonometry, right? And generally we use tan, sine and cos. Okay, so we know that in first exercise we studied sine theta equals to side opposite to theta upon hypotenuse, and cos theta equals to side adjacent to theta upon hypotenuse, and tan theta equals to opposite upon adjacent. Okay, so we will mainly use these three formulas. Okay, so let's see. Number 1, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Okay, so figure is given to you, but every time it's not necessary, right? This is the first sum of exercise, that's why figure is given to you, figure number 9.11. but सारे सम्स में आपको फिगर गिवन नहीं होगी, so you have to make yourself. Okay, and obviously trigonometry में तो right triangle ही होगा. Okay, so this is ABC. Now a circus artist is climbing a 20-meter long rope. This is 20 meter, that means this is the rope, AC is the rope, and he climbs from C to A. What is A? A is the top of this pole, that means this this rope is tightly stretched to the point A, that means the top of the pole to the ground, right? then obviously जो भी क्लाइम करेगा वो यहाँ नीचे से ही क्लाइम करेगा. सो आर्टिस्ट क्या कर रहा है, यहाँ नीचे से इस रोप के ऊपर क्लाइंबिंग कर रहा है, और इसको ये जो पोल है उसके ऊपर उसको टाइटली स्ट्रेच करके, मतलब उसको बांध दिया गया है. ठीक है, चलो. सो ए सी इज द, सो लेट्स स्टार्ट हियर. इन राइट triangle ABC, AC is the length of the rope and which is 20 meters, right? Now what is AB? AB is the height of the pole, right? And we don't have AB, so as it is. Now BC,
BC, that means distance from the foot of the pole to the point when he starts climbing. That means we can say foot distance, right? So BC is the distance. Okay, distance from this from foot of the pole to the point where he starts climbing. Okay, so this is the basic part you have to write according to your figure. Okay, every time you have to write according to figure that you make. Okay, जो भी आप फिगर बनाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पार्ट कंपलसरी लिखना है. ट्रायंगल तो आपने फॉर्म किया, बट ट्रायंगल में क्या है, AC क्या है, AB क्या है, BC क्या है, वो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा. एंड वॉट एवर इज गिवन टू यू, यू हैव टू राइट इन दिस वे. Okay, so this is the given part. Okay, and supposition as we made a figure. Okay, now let's start its solution. Okay, see further, find the height of the pole. That means we have to find this AB, right? If the angle made by the rope with the ground level, the angle made by this rope to the ground, this is ground, so ground level से ये कितना एंगल बना रहा है, 30 degrees. So this is given to you 30 degrees. Okay, so we need to find AB. Now see, AB फाइंड करना है. दिस इज 30 डिग्री एंगल जो आपको गिवन है, उसके ऑपोजिट साइड आपको AB फाइंड करनी है. और आपके पास हाइपोटेन्यूस है, ऑपोजिट साइड चाहिए और हाइपोटेन्यूस है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? ऑब्वियसली साइन. ओके, सो लेट्स इन राइट ट्राइंगल ABC साइन 30 equals to AB upon AC. Okay, now sin 30 is 1 by 2 equals to AB upon AC. AC is rope, that is 20 meters. So therefore AB equals to 20 by 2. Okay, and therefore AB equals to 10 meters. Okay, so you have to write therefore the height of the pole is 10 meters. Okay, so every time आपको briefly उसको ऐसे explain करना है. ठीक है, every time मैं ये सब सारे steps नहीं लिखूँगा, आपको मैंने फिगर एक्सप्लेन कर दी, ये सारे स्टेप्स आपको खुद ही लिखने हैं. ठीक है, देन सॉल्यूशन. ठीक है, और लास्ट में जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको फाइंड करना है, उसका स्टेटमेंट एट द एंड होना चाहिए. ओके, नाउ नंबर 2. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degrees. Okay, suppose यहाँ पे, so this is the ground, here a tree, okay, which bends. So suppose यहाँ से वो हो गया bend, तो उसका ये जो ब्रोकन पार्ट है वो यहाँ ग्राउंड पे 30 डिग्री पे टच कर रहा है. ओके, दैट मीन्स दिस इज योर राइट ट्रायंगल, यहाँ पे 30 डिग्री हो रहा है. नेम इट A B C D. ओके, नाउ सो the distance between the foot of the tree to the point where the top touches is 8 meter. That means this distance is 8 meter. AB is 8. Okay, now see, this part is broken and touches to the ground. Then obviously जितना part broken हुआ है उतना ही part यहाँ नीचे गिरेगा, तो CD जितना होगा उतना ही AC हो जाएगा. ओके, सो AC इक्वल्स टू CD लिख सकते हैं. आपके पास AB है 8 मीटर्स. जैसे फर्स्ट में एक्सप्लेन किया है वैसे ही करना है, बट ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, वो आपको फेयर बुक में सब कुछ लिखना है. ओके, नाउ
So we need to find the height of the tree. That means BD. BD, that means BC plus CD. CD as well as AC also, right? Because CD equals to AC. Okay, so we need here this hypotenuse and this BC. Okay, that means this is the opposite of this given angle. So we have the adjacent side. Adjacent है, आपको opposite भी चाहिए, hypotenuse भी चाहिए. Okay, so first we use tan. So in this triangle ABC, tan 30 equals to BC upon AB. We know that tan 30 is 1 upon root 3. BC don't have, AB is 8. 8 जाएगा मल्टीप्लाई में, therefore BC equals to 8 upon root 3 meters. Okay, now BC आपको मिल गया, opposite 8 upon root 3. Now hypotenuse, so sin या तो cos कुछ भी यूज कर सकते हो. So now again in this triangle ABC, sin 30 equals to BC opposite upon hypotenuse AC. Sin 30 is 1 by 2. BC is 8 upon root 3 upon AC. So therefore AC equals to 8 upon root 3 into 2. Okay. Now 8 2s are 16. नीचे रूट 3 है तो रेशनलाइज करेंगे. रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 16 रूट 3. ओके, सो AC इज 16 रूट 3 अपॉन 3 मीटर्स. ओके, अगर यहाँ पे इसको रेशनलाइज नहीं करना तो लास्ट में तो करना ही पड़ेगा, तो अभी इसको एज इट इज़ रखो. चलो, क्योंकि लास्ट में दोनों को प्लस करना है ना, हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है ट्री की, इसीलिए तो अभी इसको हमने 16 रूट 3 रखा है. AC इज 16 अपॉन रूट 3 मीटर्स. Now the height of the tree equals to, चलो, BC plus CD, but in place of CD we can write AC, right? So BC plus AC. चलो, BC is 8 by root 3 and AC is 16 by root 3. दोनों के नीचे root 3 है तो root 3. 16 plus 8 is 24. Now rationalize. So root 3 upon root 3. चलो, 24 root 3 upon root 3 into root 3 is 3. Okay, so 3 8s are, so 8 root 3 meters. Okay, so नीचे आपको स्टेटमेंट लिखना है, therefore the height of the tree is 8 root 3 meters. Okay, now number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park for the children below age 5 years. यानी जो 5 years से छोटे हैं, below 5 years and above 5 years. चलो, below 5 years जो है उनके लिए जो स्लाइड बना रहे हैं उसमें क्या है, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. That means जो ग्राउंड है उससे ये जो स्लाइड है वो कितनी हाइट पे होना चाहिए, ग्राउंड से 1.5 मीटर पे, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू द ग्राउंड. यानी ये जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए. आपके पास एंगल है 30, ऑपोजिट साइड है, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, स्लाइड की लेंथ. तो हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा. अब 5 इयर्स के लिए उसको कितनी हाइट चाहिए, देखो, शी वॉन्ट्स टू हैव द स्टीप स्लाइड at a height of 3 meters. So instead of 1.5 here आपको लेना है, this is 3 meters making an angle of 60 degrees. Okay, so again same process. So आपको दोनों में length of the slide मिल जाएगी. Okay, चलो next. ओके, फोर्थ भी वैसे ही आप कर सकते हो, इजी है. अच्छा, फिफ्थ देखो, अ काइट फ्लाइंग ऑन एट अ हाइट ऑफ 60 डिग्री अबव द ग्राउंड. सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल. ओके, काइट जो है
ठीक है, वो ग्राउंड से 60 मीटर अबव फ्लाई हो रही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी उसकी स्ट्रिंग। चलो, नाउ द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब ये जो उसकी स्ट्रिंग है उसको ग्राउंड से बांध दिया गया है कुछ टाइम के लिए। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्रीज। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसमें भी आपके पास ऑपोजिट है, तो ये जो स्ट्रिंग यानी हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा साइन से, ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस से। ठीक है, चलो, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लेक होता है ना, बट वो हमें निग्लेक्ट करता है यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ठीक है, चलो, ये ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे कोई 30 मीटर्स टॉल एक बिल्डिंग है। ठीक है, कोई बॉय है, यहाँ पे कोई बॉय ऑब्जर्व कर रहा है, ये उसकी आई है। ठीक है, सो उसकी जो हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर्स। तो 1.5 मीटर्स हाइट वाला जो बॉय है वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व कर रहा है? सो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 to 60। यानी उसकी आइज से ये जो बिल्डिंग है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 से 60 हो रहा है। अभी देखो, एंगल हमें यहाँ से लेना है, मैंने बोला था ना हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो मतलब ये जो नीचे वाला जो डिस्टेंस है वो हम नहीं लेंगे, सो हमारा ट्रायंगल बनेगा यहाँ से। सो वी हैव टू माइनस दिस 1.5, ये भी 1.5 हो जाएगा। सो इन दिस ट्रायंगल ये जो हमारी अपोजिट साइड होगी वो पूरे 30 में से 1.5 को माइनस करके कितनी हो जाएगी 28.5। कितनी हो जाएगी 28.5। ओके, चलो, सो अभी हमारे पास ये अपोजिट साइड है, एंगल अभी वो कितना बना रहा है 30 डिग्रीज, 30 से 60 हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, इज गोज टूवर्ड्स बिल्डिंग। तभी तो एंगल इंक्रीज होगा ना, वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा तभी 60 होगा, दूर जाएगा तो और छोटा होगा। सो यू कैन सी वी हैव टू ट्रायंगल्स। The first one is of 30 degrees and another one is of 60 degrees. In both the cases we have this 28.5, right? चलो, now name it A, B, C, D। चलो, फर्स्ट आपको ये भी जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियसली लिखी थी वैसे ही आपको लिखना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, सो द ए बी सी डी। ओके, तो ये जो ए बी है वो क्या हो जाएगा, ये ए ई में से बी ई यानी हाइट ऑफ द बॉय वो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सो ए बी इक्वल्स टू ए ई माइनस बी ई, है ना। ए बी में से मैं बी को माइनस करूँगा तो मेरे को ये रिमेनिंग पार्ट ए बी मिल जाएगा, यानी 30 में से मैंने बॉय की हाइट 1.5 माइनस कर दी तो 28.5 मीटर्स हो गया। चलो, अभी आपके पास ए बी डी ए बी सी दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, चलो, सो डी से सी तक उसने कितना वॉकिंग किया है टूवर्ड्स द बिल्डिंग, वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द सी डी। सो फर्स्ट इन दिस ट्राइंगल 1060 equals to AB upon BC. Therefore, root 3 equals to 28.5 upon BC. So, therefore, BC equals to 28.5 upon root 3 meters. अभी इसको as it is रखो। चलो, for this triangle 1030 equals to AB upon BD. So 1 upon root 3 equals to 28.5 upon BD. So therefore BD equals to
28। देखो यहाँ पे BC ऊपर गया तो √3 नीचे आया, यहाँ पे BD ऊपर गया और √3 ऊपर जाएगा, 28.5 √3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू हैव BD एंड BC बोथ। आपको CD चाहिए, तो यहाँ ये जो BD है उसमें से BC को माइनस करेंगे। ओके, सो BD में से अगर हम BC को माइनस करेंगे तो CD मिल जाएगा। ठीक है, चलो, सो देयरफॉर CD इक्वल्स टू BD यानी 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। चलो LCM √3 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, चलो, नाउ 28.5 इंटू 3, सो ये हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। चलो, 85.5 में से 28.5 को क्या करना है, माइनस। देखो 85.5 माइनस 28.5 तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 माइनस 8 यानी 7, 8 के ऊपर 7, 7 माइनस 2 इज़ 5, सो 57 आया। ओके, सो इस 57 अपॉन √3, बट नीचे √3 है तो रेशनलाइज करो, सो 57 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3, 19 3s are, so answer will be 19 √3 meters. Therefore the distance he traveled is 19 √3 meters. 14 नंबर इसके जैसा ही है। ठीक है, तो वो होमवर्क में कर सकते हो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर 7। From a point on the ground, the angle of elevation of the top and the bottom of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building. That means 20 meter high building पे एक ट्रांसमिशन टावर रखा है। सपोज ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, जिसके ऊपर ये कोई ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, तो आपको लिखना है AB इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग, BC इज ट्रांसमिशन टावर। अभी देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। कितने हैं देखो, 45 एंड 60। पहले बॉटम है तो पहले 45 एंड ऑब्वियसली ये छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा 60। ठीक है, अभी आपके पास ये 20 है, तो पहले इन ट्राइंगल DAB tan 45, अभी इस ट्राइंगल को देखो, सो tan 45 इक्वल्स टू AB अपॉन AD, सो 1 इक्वल्स टू 20 अपॉन AD, देयरफॉर AD इक्वल्स टू 20 मीटर्स। अभी हमें सेकेंड ट्राइंगल लेना है, अभी इसको भूल जाओ, तो ये CAD इन ट्राइंगल CAD tan, अभी ये पूरा तो 60 है ना, ये बीच वाली लाइन को भूल जाओ, tan 60 इक्वल्स टू AC अपॉन AD, tan 60 इज √3 AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं, और नीचे AD तो है हमारे पास 20, चलो 20 जाएगा ऊपर, सो 20 √3, AB हमारे पास है 20 प्लस BC को सब्जेक्ट बना लो, सो 20 √3, 20 वहाँ पे जाएगा तो माइनस 20, राइट। देयरफॉर BC इक्वल्स टू, दोनों में से 20 को कॉमन ले लो, सो ब्रैकेट में √3 माइनस 1 बचेगा। ओके, सो BC यानी मिल गई हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्रांसमिटर टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। चलो अभी देखो, इसमें जैसे ट्रांसमिशन टावर ऊपर दिया था और नीचे बिल्डिंग थी, तो नीचे बिल्डिंग की हाइट गिवन थी और ट्रांसमिशन टावर की हाइट आपको फाइंड करनी थी।
8 जो है वो उसका ऑपोजिट है। नीचे जो पेडेस्टल है उसकी हाइट आपको गिवन नहीं है, बट उसके ऊपर जो स्टैचू है उसकी हाइट 1.6 मीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा होमवर्क में नंबर 9। The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 डिग्री। देखो, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। सपोज ये कोई टावर है और यहाँ पे ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, चलो, सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी यहाँ से टावर, वो है 60 डिग्री। नाउ इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, चलो टावर की हाइट है आपके पास 50 मीटर्स, बेस तो दोनों का सेम ही है, तो आपके पास दो ट्राइंगल चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको ट्राइंगल ABC लेना है, तो ABC में tan 60 इक्वल्स टू अपोजिट AB अपॉन BC, तो AB तो है आपके पास, तो BC मिल जाएगा। फिर दूसरे ट्राइंगल में tan 30 इक्वल्स टू CD अपॉन BC, तो BC तो मिल गया आपको पहले ही, तो CD मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ तक होमवर्क में कर लेना। फ्रॉम नंबर 10 वी विल सी नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो होमवर्क में आपको क्लास वर्क कंप्लीट करना है 2 टाइम्स टिल क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। ओके, सी इन नेक्स्ट लेक्चर।